Good morning, dear student. Hope you all are fine, fit, and healthy. I am myself Chaitali Thakkar, your SS teacher. I am again with you to teach you SS. Before vacation, we completed the one chapter of history, geography, and civics. So today I am going to begin with second chapter of geography, whose name is natural resources, land, soil, and water. We all know that land, soil, and water are natural resources which we, which we can use directly. However, these all resources are interlinked with each other. So, in this chapter, we are going to learn in detail about land, soil, and water. We will begin with land. On Earth's surface, land covers 29% of area. Rest all is water. Human beings depend on land on most of his requirement. Not only human beings, animal is also dependent on land for all its requirement, such as food, clothing, and shelter. We need land for food, clothing, and shelter. Animal depend on land for its food and shelter. Most human activities dependent on the type of land they live. Land can be generally categorized into three types: mountain, plains, and plateaus. So first we are on mountains. हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लैंड पर डिपेंडेंट है. ठीक है, लैंड के थ्री टाइप्स है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माउंटेन्स. माउंटेन एक ऐसी जगह है जो एक हाईलैंड कही जाती है अर्थ के ऊपर. इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है: हिमालय इन एशिया, एटलास इन अफ्रीका, अल्प्स इन यूरोप एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका. ये वर्ल्ड के कुछ फेमस माउंटेन्स है. They are valuable to us as they are covered with snowfield that are source of many perennial river. पेरेनियल रिवर का मतलब होता है वो नदी जिसमें जनरली अगर बारिश हो तो ऑलवेज पानी होता ही है. मतलब वो जनरली कोरी नहीं होती, वो विदाउट वाटर नहीं होती. ऐसी रिवर जिसमें जनरली हमेशा पानी बहता रहता है, पानी की स्ट्रीम बहती रहती है, उसको कहते हैं पेरेनियल river. Perennial rivers, on the other hand, make the plain fertile by bringing alluvial soil with them. पेरेनियल रिवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वो पानी बहती हुई आती है, पानी बहता हुआ ले आती है, तब वो एलुवियल सॉइल भी अपने साथ ले आती है जो लैंड को, उसके आसपास की ज़मीन को, प्लेन फर्टाइल को वो रिच कर देती है, जो खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. नेचुरल वेजिटेशंस फाउंड ऑन माउंटेन्स प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ. द कॉनिफरस ट्री फाउंड ऑन माउंटेन ऑल्सो हैव गुड कमर्शियल वैल्यू. ये माउंटेन्स वाइल्ड लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. कॉनिफरस ट्रीज जो माउंटेन पे पाए जाते हैं उसकी बहुत ही वैल्यू है. कमर्शियल वैल्यू मीन्स a person can earn lot of money by selling the parts of that tree. Mountains also affect the climate of place. For example, Himalayas found in India stop the monsoon wind from India to blow over the extreme north and thus cause rainfall in India. ऐसा नहीं है कि माउंटेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जाते नहीं हैं वहाँ पर, या हम वहाँ पर ज़्यादातर लोग बसते नहीं हैं इसलिए वो ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. ऐसा नहीं है. हिमालयस जो है वो, इंडिया का जो हिमालय है वो क्या करता है, मॉनसून विंड को स्टॉप करता है जो एक्सट्रीम नॉर्थ से ब्लो होता है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है. सो दिस माउंटेन affects a lot for the climate of the place. Now we are on plateaus. Plateaus मतलब वो लैंड
जो जनरली हम जो रहते हैं वो प्लेन लैंड होती है। प्लेट्यूज मतलब क्या, थोड़ी ऊंचाई वाली जगह, ठीक है, एज कंपेयर टू दी प्लेन लैंड। प्लेट्यूज आर फ्लैट लैंड दैट आर हायर देन द सराउंडिंग लैंड। कुछ some famous popular plateaus of the world are Tibetan Plateau, Deccan Plateau, Anatolian Plateau in Asia, Brazilian Plateau in South America, the Siberian Plateau in Russia. Plateaus covers about 45% of the land surface. अगर हम देखने जाए तो पूरे वर्ल्ड में 44% जो लैंड सरफेस है वो प्लेट्यूज से कवर्ड है। Plateaus are generally rich in mineral deposits. Some of the common minerals found in plateaus include coal, iron ore, manganese and bauxite. हमें जनरली जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो प्लेट्यूज से मिलते हैं। प्लेट्यूज जो है वो मिनरल डिपॉजिट के रिच होते हैं, मतलब प्लेट्यूज से बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि कोल है, आयरन ओर है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है। सो ठीक है कि वहाँ पे लोग बस नहीं सकते, बिकॉज दैट लैंड इज़ नॉट comfortable to live, but these plateaus are very rich in minerals. Plains. Plains are a flat and fertile area found at low latitude. Some famous plains of the world are Ganga Brahmaputra Plains in India, the Indus Plain in Pakistan, the Yangtze Plains in China, the North European Plains in Europe, and prairies in नॉर्थ अमेरिका। ऐसा फ्लैट और फर्टाइल लैंड जहाँ पर लोग बस सकते हैं, खेती कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन। और अभी हमने कुछ फेमस प्लेन्स देखे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम brought down by the rivers. The plains are generally highly populated region as agriculture and related activities can be easily done here. Plains also have good network of transport and communication. ये 3 फॉर्म के हमने जो लैंड देखे उसमें से प्लेन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है लोगों के रहने के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर जब रिवर बहती है तो एल्यूवियम लेके आती है जो सॉइल को फर्टाइल करती है, जिस वजह से लोग वहाँ पर खेती कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी प्लेन्स जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग बसते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स एंड अदर रीजन। Even these plains have good network of transport and communication. Lands in India. India has diverse landform such as Himalaya in north, the fertile plains south of Himalayas and Deccan plateaus south of northern plains. अभी इंडिया में सारे टाइप्स के लैंड्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है और प्लेन सरफेस भी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिमालयाज। हिमालयाज आर द हाईएस्ट यंगफॉल माउंटेन with a stretch of 2400 km in an east-west direction. It has 3 parallel ranges, namely Shivalikas, Middle Himalayas and Himadri. हिमालय जो है वो हाईएस्ट यंगफॉल है माउंटेन्स का, जिसका अगर हम एरिया देखने जाए दैट इज़ 2400 किलोमीटर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से लेके। उसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं, मतलब 3 माउंटेन्स लाइन में हैं, जैसे कि शिवालिका, मिडल हिमालय और हिमाद्री। द लोएस्ट रेंज forming the foothold of Himalaya is known as Shivalika. This range has deciduous vegetation such as sal, bamboo and teak. Deciduous vegetation मतलब क्या, जनरली ऐसे पेड़ जो ऑटम सीजन में अपने पत्तों को झाड़ देते, मतलब दिस ट्रीज लूसेस देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम।
The middle range of Himalaya is known as Middle Himalaya. It is the second highest range in Himalayas. These mountains are thickly forested and have coniferous trees such as pine, cher and deodar. भी हमने पहले देखा कि थ्री पैरेलल रेंजेस हैं माउंटेन के. मिडल वाला जो है वो है मिडिल हिमालयास, और ये ऐसी जगह है जो सेकंड हाईएस्ट रेंज है हिमालयास की, और उसमें जो ट्रीज़ होते हैं वो होते हैं पाइन, चिर और दियोदर्स के. द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ हिमाद्री. सबसे अगर हिमालय में हमने जो 3 पैरेलल्स माउंटेन देखे उसमें सबसे ऊंचा जो है वो हिमाद्री है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी इम्पॉर्टेंट रिवर सच एज गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. It is also home to many high peaks such as Nanda Devi and the Mount Godwin Austen और K2. सबसे ऊंचा वाला जो हिमालय है वो हिमाद्री है, और वो ये रिवर्स जो है हमारी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र उसका वो सोर्स है. इट इज़ ऑल्सो होम टू मैनी हाई पीक. होम यानी क्या, उस पहाड़ पर और छोटी छोटी पीक्स है जिसके नाम है नंदा देवी और K2. नॉर्थन प्लेन्स. The northern plains are situated to the south of the Himalayas. They are formed by the deposit of alluvial soil brought down by the river that originate in Himalayas. The rivers like Jhelum, Chenaba, Ravi, Satluj drain the western part of northern plains. The Ganga and its tributaries like Yamuna, Chambal, Betwa and Son drain the central part of northern plain. The Brahmaputra river drains the eastern part of northern plain. Crops such as rice, wheat, jute and sugarcane are extensively grown in the northern plains. ये जो नॉर्थन प्लेन्स है वो हमारे हिमालय के साउथ में बसा हुआ है, और ये जगह ऐसी है जहाँ पर राइस, व्हीट, जूट और शुगर कैन जो है वो ज़्यादातर ग्रो होते हैं. यहाँ पे हमने रिवर्स भी देखी कौन कौन सी फ्लो होती है. नाउ आई रेड हियर. नाउ ऑन डेक्कन प्लेट्यूज. द डेक्कन प्लेट्यूज इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ नॉर्थन plains. It is made up of igneous and metamorphic rocks. It is rich in minerals such as iron ore, coal and manganese. Many rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Tapi flow through the Deccan Plateaus. ये डेक्कन प्लेटू जो है वो हमारे नॉर्थन प्लेन के साउथ में सिचुएटेड है, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं. इवन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, प्लेटूज ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं सच एज ओर, आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज. कई नदियाँ हैं जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, वो डेक्कन प्लेटू से बहती हुई निकलती है. Many dams have been constructed. This river for storing water for irrigation and generating electricity. Crops such as cotton, sugarcane and oilseeds are extensively grown here. इस प्लेटू पर डैम भी कई बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर इरिगेशन के लिए पानी पहुँचाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए. और क्रॉप जैसे कि कॉटन, शुगर कैन और ऑयल सीड्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं डेक्कन प्लेट्यूज में. कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर रिच इन नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ. Crops such as rice and coconut are grown all along the coast. इंडिया की जो कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स है वो ऐसी जगह है जो नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ जहाँ पे बहुत है. ठीक है, यू ऑल नो व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स वाइल्ड एनिमल्स. और ये ऐसी जगह है जहाँ पर राइस और कोकोनट ज़्यादा ग्रो होते हैं. ग्रेट इंडियन डेजर्ट.
Great Indian Desert is a dry region which receives very little rainfall. It is also known as the Thar Desert. इंडिया का थार डेजर्ट जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, और वो कहाँ वो उसकी लोकेशन अरावली रेंज में है, और वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन उगते हैं। अभी तो भले इंदिरा गांधी के अंदर जहाँ वहाँ पर बना दिया गया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है। In recent time, it is a major change in the land use pattern in India. Land use यानी utilization of land by human being for different purposes. वहाँ पे अभी लैंड को भले पानी कम है, फिर भी वो लैंड को कई चीज़ के लिए, कई पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है ड्यू टू द ह्यूमन एफर्ट्स। ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। योर होमवर्क इज़ टू रीड द चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।